Government of India Act 1935. Government of India Act was an act that was introduced again to pacify Indians, to make them sure that British government was working for their welfare. They were concerned with Indians. So, Government of India Act 1935 was introduced, and in this act the head of the central administration was still Governor General. He had all the supreme powers, and member of state of federation had autonomy with respect to subject delegated to them. A little change in the administration, that now the number of members of legislative assemblies increased, Indian members increased, and they had power to work in their area for the welfare of people, and they were responsible for the institutions or for the subjects. Those were delegate to them. जो भी उनको डिपार्टमेंट्स गिवन थे उनमें अच्छा वर्क करने के लिए इंडियन मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल थे. ओके, एक ये मेजर चेंज था इसमें. और इंडियन मेंबर्स ने, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स ने बहुत अच्छा वर्क किया. नाउ दे हैव अ राइट टू सिक्योर मेजॉरिटी. उनके पास मेजॉरिटी कलेक्ट करने के लिए एक एबिलिटी थी. दे कैन सिक्योर देयर मेजॉरिटी, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज हो गए थे. ओके, नाउ सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनका कंट्रोल अभी भी था किस पर? डिफेंस पे. जो मेन सब्जेक्ट था, जो मेन टॉपिक था, डिफेंस मीन्स आर्मी, पुलिस, इन पर अभी भी किसका कंट्रोल था? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हैड द कंट्रोल ऑन डिफेंस. एक्सटर्नल अफेयर्स, it means the relationship with other countries, with other areas. And railways joins the whole country, तो railways पर भी उन्हीं का कंट्रोल था. फाइनेंस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था. A federal government was established. In this act, federal government was established to solve the conflicts between स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. जो प्रोविंसेस थे, जो प्रिंसली किंग्स के अंडर एरियाज थे, उनके बीच में, और वो एरियाज जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे उनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसे सॉल्व करने के लिए फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया. कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बोथ रिजेक्टेड दीज प्रपोजल्स because they wanted Swaraj. Now they wanted independence, so they just opposed this proposal. In 1939, Second World War was started, and Britishers took army from India. They dragged India into the war. ज़बरदस्ती इंडिया को इसमें इन्वॉल्व किया गया. इंडिया didn't have any issue with any other country, but Britishers have the issues, so they dragged India to the war to satisfy their own problems, their own ambitions. At that time, anti-British movement started in our country, so Britishers sent Cripps mission under Sir Stafford Cripps. Cripps mission भेजा गया यहाँ पर to check the working. Okay, but the mission also failed to complete the demand of independence. Then Quit India movement started. Now Gandhiji realized that Britishers dragged India into that Second World War, and maybe Japan attack on India, because India was fighting from British side. तो जापान में भी अटैक कर सकता है इंडिया पर,
So he just started a movement that is called Quit India movement. As the name shows, quit, छोड़ो, ठीक है. क्विट इंडिया मूवमेंट डिक्लेयर कर रही थी कि अब इंडिया में ब्रिटिशर्स नहीं रह सकते, उन्हें इंडिया को छोड़ना पड़ेगा. दे हैड टू क्विट और लीव इंडिया. इट वॉज अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड इट रिस्पॉन्स टू गांधीजी's कॉल फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस. ये एकदम से इंडिपेंडेंस मांगा जा रहा था कि अब हम और स्लेव नहीं रह सकते हैं. सो वी नीड इंडिपेंडेंस, सो गिव अस इंडिपेंडेंस. Within 24 hours, Gandhiji and other important leaders, other famous leaders of Congress were arrested. Gandhiji gave do or die mantra. करो या मरो. या तो आप अपनी कंट्री के लिए कुछ कर जाएं, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो मरना इजी है. आप ब्रिटिशर्स के हाथों मर जाएं, नंबर ऑफ मेंबर्स जो किल्ड मेंबर्स होंगे इनकी ज़्यादा होगी तो भी हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ काम करके जाएंगे. सो दे गेव द मंत्रा डू और डाई एंड इट इंस्पायर्ड थाउजेंड ऑफ पीपल. ब्रिटिशर्स वर नाउ जस्ट filled with anger and the police and army waged brutal terror on people. वो लोगों पर ज़्यादा बुरी तरह से उनके ऊपर बिहेव करने लगे उनके साथ. और इससे जो ब्रिटिशर्स थे वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे. As Gandhiji take the proper control over the Quit India movement, on the other hand there was a prominent leader that was Subhash Chandra Bose. He was ready to join hand with the enemies of British like Germany and Japan. They were against Britishers and Indians were also against the Britishers. So Subhash Chandra Bose was against Britishers. That's why he was ready to join hands with enemies of British. Okay, he gave the slogan, you give me blood and I will give you freedom. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. It doesn't mean कि वो blood donate करने को कह रहे थे. You give me blood means कि आप हेल्प कीजिए, आगे आइए, अपनी कंट्री के लिए अपनी लाइफ भी देनी पड़े तो हम दे सकते हैं. अगर हमें किल किया जाता है तो वो ब्लड स्प्रेड होता है तो इट मीन्स दैट यू गिव मी ब्लड, you must have the courage to die for your country and you got the freedom. It means that you give me blood and I will give you freedom. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. This slogan was given by नेताजी सुभाष चंद्र बोस. He disappeared from the Indian politics. जो इंडिया की पॉलिटिक्स थी वो यहाँ से बिल्कुल डिसअपियर हो चुके थे और यहाँ पर ब्रिटिशर्स के सामने वो नहीं आए. ही वेंट टू अब्रॉड. वो अब्रॉड जा चुके थे फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर कंट्रीज, टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर कंट्रीज. सुभाष चंद्र बोस रीऑर्गेनाइज्ड इंडियन नेशनल आर्मी. उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को दोबारा से ऑर्गेनाइज किया. दैट वाज फर्स्टली ऑर्गेनाइज्ड बाय मोहन सिंह. पहले मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी बट सुभाष चंद्र बोस ने उसे टेक ओवर किया और उसे रीऑर्गेनाइज किया. ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी होस्टेड द ट्राई कलर बट दे वर अरेस्टेड एंड ट्राइड. द आर्मी मैन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी ट्राइड टू होस्ट द ट्राई कलर सो मैनी एरियाज एंड सो मैनी बिल्डिंग्स. उन्होंने बहुत जगह तिरंगा लहराने की कोशिश की बट हर जगह उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था. ओके, टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्राइम मिनिस्टर एटली ऑफ लेबर पार्टी केम टू पावर इन ब्रिटेन. ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन बने? प्राइम मिनिस्टर एटली. और उन्हीं की सिंपैथी के कारण हमारी जो डिमांड थी, डिमांड ऑफ इंडियन पीपल टू गॉट फ्रीडम was
हैड द इम्पोर्टेंस, उनको इम्पोर्टेंस दिया गया कि इंडियंस को फ्रीडम देना ज़रूरी है. दे हैड सिंपैथी विद अस. So a cabinet mission was sent to India in March 1946, and this cabinet mission proposed for the formation of a अंतरिम गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. यहाँ पर जब ये कैबिनेट मिशन इंडिया में आया तब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई. बट मुस्लिम लीग refused to be the part of that constituent assembly or the interim government because they wanted a separate Muslim country. Firstly, all the Indian leaders opposed this, but everyone wanted to be free, so they decided to give that country to Pakistan, that area to Pakistan. So they agreed on that plan, and with this our country divided into two parts, India and Pakistan. India से 3 parts हुए. Firstly, Pakistan, that is in west, and here Bangladesh वाला area that was also included in Pakistan. This area was the part of Pakistan. जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का पार्ट था और उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था. ओके, एंड दिस एरिया दैट इज इंडिया. और इंडिया में भी बहुत से ऐसे पार्ट्स थे जो अभी भी इंडिया का पार्ट नहीं थे. दे वर अंडर कंट्रोल ऑफ डिफरेंट किंग्स एंड डिफरेंट कंट्रीज. सो इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू so many parts at the time of independence, mainly in 2 parts, India and Pakistan. So this is the story of our independence. I hope you have revised the whole chapter properly. That's it for today. Thank you and have a nice day.